Okay. So we were discussing about charge of GST, right? Basic provisions we discussed, and we have discussed some basic things about reverse charge mechanism, right? Now we will continue our discussion. The main part from our syllabus as far as this RCM is concerned is services which are covered by reverse charge mechanism. Okay. Goods I have given you just for the information. What is covered in our syllabus is services which are subjected to reverse charge mechanism, and these services which are subjected to reverse charge mechanism are from subsection 9(3) of GST, okay, 9(3) of CGST or 5(3) of IGST or 7(3) of UTGST, same provisions are there. Okay. So सर्विसेज कवर्ड अंडर आरसीएम फॉर 9 सबसेक्शन 3, 9 सबसेक्शन 4 में जो सर्विसेज कवर हो रहे हैं दैट इज नॉट अवर पार्ट ऑफ सिलेबस, राइट. सो 9(3) और 9(4) में डिफरेंस क्या बताया था मैंने, कोई बताएगा? व्हाट वाज डिफरेंस बिटवीन 9(3) रिवर्स चार्ज एंड 9(4) रिवर्स चार्ज? राइट. 9(3) इज एप्लीकेबल फॉर सर्विसेज विच आर नोटिफाइड. ओके, उसमें सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है, इट डज नॉट मैटर एट ऑल. बट एज फार एज रिवर्स चार्ज अंडर 9(4) इज कंसर्न, व्हाट इज द प्रोविजन? स्पेसिफाइड सर्विसेज है लेकिन उसमें सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए. इफ ओनली इन दैट केस रिवर्स चार्ज अप्लाइज फॉर 9(4). ओके, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अवर डिस्कशन. 9 सबसेक्शन 3 के अंडर जो सर्विसेज नोटिफाई हुए हैं उनमें से रिवर्स चार्ज कौन कौन सी सर्विसेज पे एप्लीकेबल है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. ठीक है. हे this you have to remember, okay, because questions may be asked on any category of these services, right. So these services which are covered under RCM are notified by notification 11 of 2017. CT मतलब सेंट्रल टैक्स, R का मतलब है रेट. ओके, मैंने बोला था दो टाइप के नोटिफिकेशन होते हैं, जीएसटी के रेट नोटिफिकेशन अलग होते हैं और नॉर्मल नोटिफिकेशन अलग होते हैं. सो नॉर्मल नोटिफिकेशन अगर ये रहता तो उसका नंबर 11 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स इतना ही हुआ होता. Okay, since it is rate notification, it is CTR means central tax rate notification. So in this notification, these different types of services are notified, or these services are covered under reverse charge applicability. So first service covered in this is your this one GTA services or goods transport agency. कौन सी सर्विस कवर की है? फर्स्ट वन इज GTA goods transport agency. सी अगेन द लॉजिक बिहाइंड दिस इज सेम. ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है हमारे कंट्री में लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, राइट. इंडिविजुअल ट्रक ओनर्स, इंडिविजुअल 2, 4, 5 ट्रक ओनर्स, मतलब ऐसे ट्रक्स होल्ड करने वाले बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे हैं जो कोई ऐसे रेयरेस्ट लोग रहेंगे जिनका टर्नओवर 20 लाख 40 लाख क्रॉस होता रहेगा. So they are not subjected to registration because of their turnover is below threshold limit. But to catch that entire industry in the gamut of GST, they have introduced this under reverse charge mechanism. Initially, under service charge, sorry, not service charge, service tax regime also, these services were under reverse charge mechanism. Whatever we are going to discuss, most of these services were under reverse charge in pre-GST regime also. Okay. So what happened at that time, once the GST or one service tax was levied on transport service under forward charge mechanism, then the entire transporters go on strike. Okay, they went on strike. So स्ट्राइक ये करने के लिए गवर्नमेंट ने एग्री किया कि ठीक है हम आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट. सो सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी GTA, okay, in respect of transportation of goods by road to any factory registered under Factories Act 1948, society registered under Society Registration Act 1860 or any law for naming in force, any cooperative society established by or under any law for timing in force, any person registered under GST Acts, any body corporate established by or under any law, any partnership firm whether registered or not including an association of persons, and any casual taxable person. So if goods transport agency provides services of transportation of goods by road to any of these 7 specified persons, ओके, इंपॉर्टेंट क्या है, GTA ने सर्विस देना है लेकिन किसको? ये जो 7 टाइप के स्पेसिफाइड पर्सन्स है इनको अगर GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करता है देन दैट सर्विस इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन पे GST कौन पे करेगा? GTA पे
नहीं करेगा। जीटीए इज अ सर्विस प्रोवाइडर। ये जो रिसिपिएंट्स है, जो कोई रिसिपिएंट रहेगा वो रिसिपिएंट उसके ऊपर का टैक्स क्या करेगा, पे करेगा। सो एक नया कंसेप्ट है जीटीए, व्हाट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ओके, सो इसका डेफिनेशन इस नोटिफिकेशन में ऐसा दिया हुआ है कि जीटीए मीन्स एनी पर्सन who provides service in relation to transportation of goods by road and issues a consignment note by whatever name called. Okay, so basically goods transport agency जो रोड ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करता है, ओनली दोज पर्सन्स आर कवर्ड अंडर जीटीए। अगर एयर फ्रेट कैरियर रहेगा जीटीए में कवर नहीं होगा, रेलवे थ्रू ट्रांसपोर्ट होता रहेगा जीटीए में कवर नहीं होगा। कौन कवर होगा? जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड प्रोवाइड करता है, सिर्फ वही पर्सन जीटीए में कवर होते हैं। सो दो चीज़ें होना जरूरी है उस पर्सन को जीटीए बोलने के लिए। फर्स्ट वन इज ही मस्ट बी प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, एंड सेकंड ही मस्ट इशू अ कंसाइनमेंट नोट। ओके, कंसाइनमेंट नोट क्या होता है पता है किसी को? कभी कोई आपने कोई ट्रांसपोर्ट पे गुड्स भेजे है किसी यहाँ पे जाके, तो आपको आइडिया रहेगा। व्हाट इज कंसाइनमेंट नोट? कंसाइनमेंट नोट बेसिकली इट इज अ रिसीट विच इज गिवन बाय द ट्रांसपोर्टर। उसमें क्या रहता है? कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, कहाँ से भेजा है, कहाँ पे जाने वाला है, गुड्स का डिस्क्रिप्शन क्या है, राइट? उसमें मतलब गुड्स का वेट कितना रहेगा, क्या है, वो सब डिटेल्स उसमें दिए हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट नोट। सो कोई पर्सन जीटीए होने के लिए दो कंडीशन जरूरी है। एक तो ही मस्ट बी प्रोवाइडिंग सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड, राइट? एंड सेकंड वन, ही मस्ट इशू कंसाइनमेंट नोट। If he does not issue consignment note, then he is not a GTA. ओके, सो जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, मतलब ऐसा है कि जीटीए होने के लिए मेरे खुद के व्हीकल्स होना जरूरी नहीं है। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं कोई किसी के ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हायर कर सकता हूँ और ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। आई कैन डू दैट। सो फॉर बीइंग अ जीटीए इट इज नॉट नेसेसरी कि आई शुड ओन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ओके, आई कैन हायर दैट ऑल्सो, बट वॉट इज इंपॉर्टेंट कि मैं ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस मतलब आई शुड बी प्रोवाइडिंग दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस एंड आई शुड इशू कंसाइनमेंट नोट, देन ओनली आई विल बी टर्म्ड एज जीटीए। ठीक है, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट के सर्विस ही इसमें कवर होते हैं। इसमें क्या बोला है देखो, सर्विस प्रोवाइडर कौन है? जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। रिसिपिएंट कौन है? एनी ऑफ दिस 7 रिसिपिएंट्स अगर रहता है, देन दिस सर्विस इज कवर्ड अंडर विच मैकेनिज्म? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसका मतलब इसमें जीटीए को टैक्स नहीं देना है। टैक्स किसको देना है? रिसिपिएंट को देना है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो 7 स्पेसिफाइड पर्सन्स कौन है? फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ओके, सो इट मे बी रजिस्टर्ड एज अ फैक्ट्री और अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ओके, जो मतलब ये सोसाइटीज जो नॉर्मली चैरिटेबल एक्टिविटीज या ऐसा कुछ करते हैं, दीज आर कवर्ड अंडर दी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। सो उस एक्ट के अंडर कोई रजिस्टर्ड है तो वो भी उसमें कवर होता है। एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, एस्टेब्लिश बाय अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कोई रहेगा, या फिर एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ऐसा कोई पर्सन जो जीएसटी के अंडर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ओके, या फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट। व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? इज इट कवर्ड अंडर कंपनीज लॉ? डेफिनेशन क्या है बॉडी कॉर्पोरेट का? अंडर कंपनीज एक्ट और ओके ओके और अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब नॉट ओनली कंपनी, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कवर होता है वो डेफिनेशन में। ओके, या फिर ऐसा कोई कंपनी है, मान लो जो यूएस के कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है लेकिन वो इंडिया में काम कर रहा है, दैट इज ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब जिसको सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है एंड दैट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर सम लॉ, दैट इज कॉल्ड बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, सो किसी बॉडी कॉर्पोरेट को जीटीए सर्विस प्रोवाइड करता है, या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, और एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। फॉर टाइमिंग ऐसा एक कैटेगरी होता है जीएसटी में, उसको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इतना सब सिर्फ ध्यान में रखो आप उसको, उसका मतलब क्या है वो हम हमारे एक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी का सेपरेट चैप्टर है उसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो एट दैट टाइम आई विल टेल यू व्हाट इज दिस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। फॉर टाइम बिंग जस्ट रिमेंबर कि ये जो 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स है, इनको अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड का सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ये सर्विस कहाँ पे कवर होता है? आरसीएम में कवर होता है। इसका मतलब इसके ऊपर को टैक्स जो है वो जीटीए को नहीं पे करना है। किसको पे करना है? रिसिपिएंट को पे करना है।
नाउ देखो सप्लाई ऑफ सर्विस कौन है, जीटीए हु हैज नॉट पेड सीजीएसटी एट द रेट 6%. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. हाँ, कैसे होता है कि ट्रांसपोर्टर जो है ओके वो ट्रांसपोर्टर को दो ऑप्शन है जीएसटी पे करने के. ओके अब देखो यहाँ पे पेड सीजीएसटी एट द 6%, इसका मतलब एसजीएसटी भी एट द 6% आ जाएगा. सीजीएसटी एक ही टैक्स नहीं हो सकता ना किसी जगह पे, सीजीएसटी है तो जोड़ी में एसजीएसटी भी हमेशा आने वाला है. ठीक है, तो जीटीए को दो टाइप के ऑप्शन अवेलेबल है. एक तो आप 5% जीएसटी का ऑप्शन ऑप्ट करो या फिर आप 12% जीएसटी का ऑप्शन ऑप्ट करो. दिस ऑप्शन इज गिवन टू वूम, जीटीए. ओके तो इसका मतलब है कि अगर जीटीए ने वो 12% वाला ऑप्शन ऑप्ट किया है जीएसटी भरने का, तो ऑप्ट कैसे करना है, उसको एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है जीएसटी पोर्टल पे कि आई एम ऑप्टिंग फॉर दिस 12% स्कीम. ओके सो अगर वो ट्रांसपोर्टर ने 12% का ऑप्शन ऑप्ट किया है, मतलब 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी, देन दिस सर्विस इज कवर्ड अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. इफ जीटीए हैज ऑप्टेड फॉर 12% option, then the service is not covered under RCM. Understood? Okay, GTA ने 5% का ऑप्शन लिया है तो ही वो सर्विस RCM में कवर होता है. ठीक है, मतलब कुछ कुछ हमारे यहाँ पे ऐसा है कि कोई कुछ कुछ GTA ऐसे है वो जो वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज DHL, ओके, ब्लू डार्ट, फेडेक्स, ऐसे कुछ बहुत बड़े कॉर्पोरेशन से जो वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं. सो दे आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर. सो उनकी मांग थी कि हमें ऑप्शन दो, वी आर रेडी टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज. राइट, सो अगर जीटीए ने 6% सीजीएसटी मतलब प्लस 6% एसजीएसटी आ जाएगा उसके साथ, मतलब 12% जीएसटी पे करने का ऑप्शन जीटीए ने ऑप्ट किया है, तो वो सर्विस रिवर्स चार्ज में कवर क्या होगा, नहीं होगा. उसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा, ट्रांसपोर्टर ही पे करेगा. ओके देयरफॉर सप्लाई ऑफ सर्विस कौन होना चाहिए, जीटीए हु हैज नॉट पेड जीएसटी एट 6%, सीजीएसटी एट 6%, इसका मतलब एसजीएसटी भी एट 6%. समझ गया? ठीक है, मतलब जीटीए अगर 5% का ऑप्शन लेता है तो ही वो रिवर्स चार्ज में कवर होता है और रिसिपिएंट को टैक्स उसके ऊपर पे करना पड़ता है. ओके तो दो कंडीशन यहाँ पे क्या, एक तो वो जीटीए होना चाहिए जिसने 12% का ऑप्शन नहीं लिया है, और जो रिसिपिएंट है दैट शुड बी एनी वन ऑफ द 7 स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स. ओके रिसिपिएंट कौन होना चाहिए, ये जो 7 स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स है, कौन, फैक्ट्री और सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एओपी और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. ये जो 7 स्पेसिफाइड पर्सन है, इनको अगर जीटीए ने सर्विस प्रोवाइड किया है और जीटीए ने 12% का ऑप्शन नहीं लिया है, तो दिस सर्विस इज कवर्ड अंडर व्हाट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. इसका मतलब रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है. तो आपके मन में ऐसा सवाल आ गया होगा कि ये 7 स्पेसिफाइड पर्सन छोड़ के अगर किसी को ट्रांसपोर्टर ने सर्विस दिया, राइट, तो क्या होगा. सो दैट वी आर गोइंग टू सी. बट इसमें एक राइडर ऐसा है कि हाउएवर आरसीएम शैल नॉट apply to services provided by GTA by transportation of goods in a goods carriage or by road to department or establishment of central government, state government, union territory और local authority और government agencies. इसमें उन्होंने क्या बोला, अगर GTA ने कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को सर्विस प्रोवाइड किया है या फिर लोकल अथॉरिटी को सर्विस प्रोवाइड किया है, लोकल अथॉरिटी मतलब ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, वो सब इसमें आ जाएंगे, और गवर्नमेंट एजेंसी को सर्विस प्रोवाइड किया है. व्हाट डज इट मीन कि इनको सर्विस दिया मतलब रिसिपिएंट खुद गवर्नमेंट है, तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर आरसीएम नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट खुद को टैक्स पे कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना, बिकॉज रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज गवर्नमेंट इन दिस केस. देयरफॉर दे आर सेइंग कि जीटीए ने अगर इनको सर्विस प्रोवाइड किया है तो आरसीएम में कवर नहीं होगा. ओके आरसीएम में फिर से कवर कब होगा, रिसिपिएंट मस्ट बी एनी वन ऑफ 7 स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स एंड सर्विस प्रोवाइडर मस्ट बी जीटीए who has not taken the option to pay tax at 12%. ओके तो मतलब इसका टैक्सेशन कैसे होता है, देखो जीटीए ने अगर देखो 5% का ऑप्शन ऑप्ट किया है, ओके जीटीए ने क्या किया है, 5% का ऑप्शन ऑप्ट किया है, और उसने कोई 7 स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को सर्विस प्रोवाइड किया, तो ये सर्विस आरसीएम में टैक्स होगा और उसके ऊपर का टैक्स कौन पे करेगा, रिसिपिएंट पे करेगा. सिमिलरली अगर जीटीए ने 12% का ऑप्शन ऑप्ट किया है
ओके और एनी वन ऑफ स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को सर्विस दिया है तो वो कौन से कहाँ पे टैक्स होगा, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स होगा, इट विल नॉट बी टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, एंड उसमें टैक्स कौन पे करेगा, जीटीए पे करेगा। और इन दोनों केसेस में भले वो 5% वाला आदमी हो या 12% वाला आदमी हो, इसने अगर ये जो 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स है ये छोड़ के किसी और 8वें पर्सन को सर्विस दिया है तो दैट सर्विस हैज बीन मेड एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होता। समझ गया? समझ गया? देखो फिर से एक बार बोलता हूं, रिवर्स चार्ज कब एप्लीकेबल होगा, सबसे पहली बात कि जीटीए है और उसने 12% का ऑप्शन नहीं लिया है तो ही रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। सो जीएसटी उसको दो ऑप्शन है, 5% या 12%। सो अगर वो 12% को ऑप्ट करता है और वो किसको सर्विस देता है, ये जो 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स है, एनी फैक्ट्री, एनी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ और एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पार्टनरशिप फर्म और एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये जो 7 स्पेसिफाइड पर्सन को अगर जीटीए कोई सर्विस प्रोवाइड करता है और वो 12% का ऑप्शन लेता है तो ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स होगा, जीटीए खुद उसके ऊपर टैक्स भरेगा। समझ गया सबको? अगर जीटीए 5% का ऑप्शन लेता है और ये जो 7 स्पेसिफाइड पर्सन है उनको सर्विस देता है तो क्या होगा, वो आरसीएम में टैक्स होगा और उसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा, जीटीए पे नहीं करेगा, जो रिसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा। अंडरस्टूड? ओके। लेकिन अगर जीटीए ने भले वो 5% का ऑप्शन लिया हुआ हो या फिर 12% का ऑप्शन लिया हुआ हो, अगर ये 7 स्पेसिफाइड पर्सन छोड़ के किसी और को सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होता, दैट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। अब समझ में आ गया? 3 टाइप से ट्रांजैक्शन ये टैक्स हो सकता है। एक, अगर वो 5% से है, अगेन फिर से आई एम रिपीटिंग, 5% का ऑप्शन है और स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को सर्विस दिया है तो क्या होगा, आरसीएम में आ जाएगा, टैक्स कौन पे करेगा, जीटीए नहीं करेगा, रेसिपिएंट पे करेगा। अगर वो 12% का ऑप्शन लेता है और स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विस देता है तो क्या होगा, उसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा, जीटीए खुद पे करेगा क्योंकि वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स होता है। लेकिन ये 7 स्पेसिफाइड पर्सन छोड़ के किसी को सर्विस अगर जीटीए दे रहा है तो दैट सर्विस इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, देन जीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल। जीटीए को भी पे नहीं करना है और रेसिपिएंट को भी पे नहीं करना है। समझ में आ गया पहला ट्रांजैक्शन जीटीए के केस में क्या होता है? अंडरस्टूड? ओके, नाउ टेल मी, जीटीए हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर 12% ऑप्शन। जीटीए ने क्या किया, कितने परसेंट का ऑप्शन लिया है, 12% का ऑप्शन लिया है और वो किसी ऐसे पर्सन को सर्विस देता है जो पर्सन जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है। ओके, रिसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो वो यहाँ पे कवर होगा क्या आरसीएम में? देखो सबसे पहले तो वो 12% का ऑप्शन ले रहा है, मतलब आरसीएम आएगा ही नहीं उसके ऊपर। ओके, फिर आपको देखना है कि किसको सर्विस दे रहा है, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है। सो अनरजिस्टर्ड पर्सन ये 7 स्पेसिफाइड पर्सन में आता है क्या कहीं पे? देखो रजिस्टर्ड है तो आता है। ओके, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज कवर्ड, बट इफ ही इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी देन ही इज नॉट कवर्ड। मान लो वो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट है तो आ जाएगा क्या? समझ गया ना? आ जाएगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड है लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म है फिर भी कवर हो जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्टूड? वो अनरजिस्टर्ड है लेकिन वो फैक्ट्री एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है तो कवर हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अंडरस्टूड? अनरजिस्टर्ड लेकिन वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो फिर भी वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, जीटीए ने कौन सा ऑप्शन लिया है और जो रिसिपिएंट है ये 7 स्पेसिफाइड पर्सन में से कोई है क्या। अगर वो है तो अगर वो 5% देन आरसीएम, 12% देन नो आरसीएम, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स होगा। और 7 लोग छोड़ के किसी और को सर्विस दिया है तो जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होगा उसके ऊपर। ये समझ में आ गया पहला ट्रांजैक्शन सबको? देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? हाँ, वो जीएसटी लॉ के एक्चुअल इस पे डिस्कशन शुरू हुआ इसलिए वो थोड़ा आपको लगा, ये कंसेप्ट थोड़े नए हैं आपके लिए इसलिए। ठीक है, समझ में आ गया? देखो कोई भी डाउट है तो इमीडिएटली आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इन नंबर ऑफ टाइम्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, जाऊया पुढे। ओके, यस। नेक्स्ट सर्विस विच इज कवर्ड अंडर जीएसटी इज सर्विसेस सप्लाइड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट including a senior advocate or firm of advocates by way of legal services directly or indirectly. ओके, कोई एडवोकेट अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करता है,
ओके, एडवोकेट किसको सर्विस प्रोवाइड करता है? बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करता है, देन दैट सर्विस इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, तो एडवोकेट पे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है जीएसटी पे करने का, किसके ऊपर है? रिसिपिएंट के ऊपर है। ओके, नाउ देयर कैन बी ए क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टर तो वो तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, राइट ना? या फिर क्या है कि जो बीड़ी रैपर लीव्स कलेक्ट करने वाले हैं, टोबैको लीव्स कलेक्ट करने वाले हैं, वो तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए तो आरसीएम ठीक है। ये एडवोकेट क्यों आरसीएम में आ गए? ओके, एडवोकेट्स आर वेल एजुकेटेड पीपल, सो व्हाई दे आर कवर्ड अंडर आरसीएम? सी व्हाट हैज हैपन, देयर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सबसे पहले एडवोकेट के ऊपर जब फॉरवर्ड चार्ज में सर्विस टैक्स लेवी करने का सवाल आया था, दैट एट दैट टाइम आई थिंक मिस्टर चिदम्बरम वाज आवर फाइनेंस मिनिस्टर एंड ही हिमसेल्फ इज एन रिनोन एडवोकेट। सो उसके टाइम पे वो एडवोकेट लोगों ने ऐसा ही किया कि वी आर, लोगों को हम जस्टिस देने का काम करते हैं, सो हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं आना चाहिए। सो देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग लॉबिंग बाय दोज पर्सन। सो देयरफॉर उन्होंने क्या किया, वो फॉरवर्ड चार्ज में से निकाल के रिवर्स चार्ज में डाल दिया। सो अगर कोई भी एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो वो कहाँ पे कवर हो जाएगा? रिवर्स चार्ज में कवर हो जाएगा। ओके, उसके ऊपर एडवोकेट को कोई लायबिलिटी नहीं आएगा। जो बिजनेस, इसमें एक बात है, देखो रिसिपिएंट शुड बी अ बिजनेस एंटिटी। हाँ, तो मतलब कोई एडवोकेट अगर किसी का डिवोर्स का केस फाइट करता है, दैट इज नॉट कवर्ड अंडर आरसीएम, बिकॉज वो डिवोर्स का केस जो इसके लिए फाइट करेगा वो तो कोई बिजनेस एंटिटी नहीं रहेगा ना, वो तो इंडिविजुअल पर्सन रहेगा, राइट? या फिर वो किसी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के बारे में कुछ केस चला रहा है, दैट इज नॉट कवर्ड हियर। बट किसी कंपनी के प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट रहेगा और अगर वो केस चलाता रहेगा तो ये यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट्स और एनी सीनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट किसको बोलना है? द कोर्ट रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर पर्सन एज ए सीनियर एडवोकेट। ओके, अगर वो कोर्ट ने उसको रिकॉग्नाइज किया है एज ए सीनियर एडवोकेट, देन उसको सीनियर एडवोकेट बोलना है। सो इनके जो सर्विसेज है किसको दिए हुए हैं? बिजनेस एंटिटी को। तो इसके ऊपर आपको मतलब एडवोकेट को कोई भी लायबिलिटी नहीं बनता है, वो बिजनेस एंटिटी जो है उसको उसके ऊपर टैक्स पे करना है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एडवोकेट ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड किया तो टैक्स कौन पे करेगा? देन कौन पे करेगा? हमारे यहाँ पे रिसिपिएंट जो है बिजनेस एंटिटी, दैट विल पे द टैक्स। Understood? Okay. Then services supplied by an arbitral tribunal to a business entity. जैसे एडवोकेट है वैसे ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी कवर किए हुए हैं। ओके, एंड देयर सर्विसेज कवर्ड अंडर आरसीएम एंड द बिजनेस एंटिटी विच इज रिसिपिएंट ऑफ सर्विस विल पे द टैक्स ऑन दैट ट्रांजैक्शन, राइट? ओके, ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है पता है किसी को? व्हाट इज आर्बिट्रेशन बाय द वे? एनी आइडिया? This is one of the good career opportunity for chartered accountants also to work as an arbitrator. Okay, ऐसा है कि अगर मान लो आई विल गिव यू द रियल लाइफ स्टोरी, अगर किसी दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, ओके, तो ऐसा है कि हमेशा वो डिस्प्यूट आप कोर्ट में लेके जाओगे और उसके ऊपर केस फाइट करते रहोगे तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ओके, एज वेल एज उसके लिए कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए बहुत से लोग आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करते हैं। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट बोले तो इट इज़ नॉट सेटलमेंट जैसे हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। ओके, इट इज़ अ ऑफिशियल कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू पर्सन्स। ओके, सो ये जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है वो डिस्प्यूट सेटल करने के लिए देयर शुड बी सम मिडल मैन। ओके, वो विल गिव अ बेटर ऑप्शन जिसमें दोनों को विन विन सिचुएशन हो सकता है। उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं। आर्बिट्रेटर मतलब उसको लॉ का डिटेल नॉलेज होता है, उसको कमर्शियल नॉलेज भी बहुत अच्छा होता है। सो दो पार्टीज के बीच में एक मिडल मैन, सो ही विल ट्राई टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस बिटवीन दोज टू पार्टीज एंड दोनों को बेनिफिशियल हो, ऐसा कोई उसमें से वे आउट हम निकाल सकते हैं क्या, इसके लिए ये आर्बिट्रेटर्स काम करते हैं। ओके, सो ये हमारे लोगों के लिए मतलब हमारे इंस्टीट्यूट का एक अलग से कोर्स भी है पोस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब आप मेंबर जब हो जाओगे उसके बाद वो आर्बिट्रेशन का कोर्स आप कर सकते हो। Okay, it is good career opportunity for that, so you can think of that. Just I am giving an idea. So ऐसे कुछ arbitral tribunal अगर रहेंगे, उन्होंने अगर किसी business entity को सर्विस प्रोवाइड किया है तो again that is covered under reverse charge and that arbitral tribunal is not liable to pay the tax. Who is liable to pay the tax? Recipient, मतलब that business entity will pay the tax under reverse charge mechanism. ये understood? समझ में आ गया? ठीक है। Next, fourth type of service, services provided by
वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म. कौन सा सर्विस है? थर्ड वन, सॉरी फोर्थ वन इज स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट or partnership firm located in taxable territory, then this is covered under RCM. इसका मतलब देखो, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म छोड़ के किसी और को अगर से सर्विस दिया हुआ है, देन रिवर चार्ज में कवर होगा क्या? नहीं होगा. ओके, व्हाट इज दिस स्पॉन्सरशिप सर्विस? कैन एनीवन टेल मी? कोई इवेंट स्पॉन्सर करते हैं या फिर ऐसा. जस्ट टेक एग्जांपल, हाँ, सिंपल एग्जांपल. आपको एक बेसिक चीज़ इसमें मुझे बतानी है. मान लो वी आर रनिंग एन एनजीओ, ओके, और हमने क्या किया है, ये एनजीओ में एनजीओ के लिए मुझे कुछ फंड रेजिंग करना है, एंड फॉर दैट फंड रेजिंग मैंने क्रिकेट का एक एग्जीबिशन मैच अरेंज किया. ओके, कुछ सीनियर प्लेयर्स को इनवाइट किया और मैंने एक एग्जीबिशन मैच क्रिकेट का अरेंज किया कि उसमें टिकट से जो कुछ पैसे आएंगे दैट विल बी यूज एज अ कॉर्पस फॉर माई एनजीओ. ओके, और व्हाट हैपन कि ये करने के लिए सपोज लेट्स से आई अप्रोच रिलायंस इंडस्ट्रीज और मैंने बोला कि आप मेरा जो इवेंट है वो स्पॉन्सर करो. ओके, ठीक है, एंड दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज एग्रीड टू प्रोवाइड मी द स्पॉन्सरशिप, और उन्होंने लेट्स से सम 10 लाख का सम मेरे मैच के लिए अलॉट कर दिया. अंडरस्टूड? यही होता है ना स्पॉन्सरशिप में, राइट? नाउ यू हैव टू टेल मी, इस ट्रांजैक्शन में सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है और रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है? ओके, रिलायंस इज सप्लायर ऑफ सर्विस एंड द एनजीओ इज द रिसिपिएंट, राइट? So it will it be covered under RCM? Yes? How? Okay, so supplier of service is any person and recipient is recipient body corporate? Okay. You yes, okay. You have to give me answer of one question. Okay. नॉर्मल केस में क्या होता है, पैसे कौन किसको पे करता है? रिसिपिएंट ऑफ सर्विस पेज टू सप्लायर और सप्लायर ऑफ सर्विस पेज टू रिसिपिएंट? रिसिपिएंट पेज टू सप्लायर. यहाँ पे पैसे कौन किसको दे रहा है? मैं रिलायंस को दे रहा हूँ, रिलायंस मुझे दे रहा है. रिलायंस इज पेइंग टू मी. सो प्रोवाइडर कौन है और रिसिपिएंट कौन है? राइट ना, एग्जैक्टली जो ऐसे बताया आपने उसका अपोजिट है. आई एम प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विस टू रिलायंस and for that he is paying me the money. जैसे हम ऑर्डिनरी कोर्स में बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बिल्कुल उसके अपोजिट होता है. सही है ना? स्पॉन्सरशिप मतलब मैंने उनको एडवर्टीजमेंट उनका करने को एग्री किया है, इसके लिए वो मुझे पैसे पे कर रहे हैं. सो दे आर पेइंग मी 10 लाख. सो व्हाट आई विल डू, मैं रिलायंस का बड़ा कोई बैनर लगाऊंगा या फिर एलईडी स्क्रीन लगाऊंगा जिसके ऊपर उनका एडवर्टीजमेंट रहेगा. सो स्पॉन्सरशिप कौन किसको दे रहा है ये ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि हम जो बोलते हैं ऑर्डिनरी कोर्स में वो बिल्कुल उल्टा बोलते हैं. हम बोलते हैं कि रिलायंस ने इवेंट स्पॉन्सर किया है, मतलब पैसे उन्होंने दिए लेकिन स्पॉन्सरशिप सर्विस मैंने रिलायंस को प्रोवाइड किया है. मतलब एनजीओ हैज प्रोवाइडेड सर्विस टू रिलायंस. ओके, सो इज रिलायंस बॉडी कॉर्पोरेट? यस, राइट. सर्विस प्रोवाइडर कैन बी, सप्लायर कैन बी एनी पर्सन, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता. सो ये सर्विस आरसीएम में कवर हो जाएगा. टैक्स कौन पे करेगा? मैं करूंगा कि रिलायंस? रिलायंस विल पे द टैक्स. समझ में आ गया? ओके, स्पॉन्सरशिप का ट्रांजैक्शन कैसे होता है? कोई डाउट है इसमें? हम बिल्कुल उल्टा बोलते हैं, इसलिए मैंने जानबूझकर ये आपको क्वेश्चंस पूछे कि स्पॉन्सर उन्होंने किया है एग्रीड, बट सर्विस किसने किसको दिया है? हमने उनको प्रोवाइड किया है. सॉरी, दिया ना, उन्होंने मुझे पैसे दिए इसलिए मैंने उनके बैनर्स लगाए मेरे इवेंट में. हाँ, उनका एडवर्टीजमेंट किया ना मैंने मेरे इवेंट में. दैट इज अ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय मी. ठीक है. सो अगर ऐसा सर्विस होता है तो ये ध्यान से देखना है कि प्रोवाइडर कौन है और रिसिपिएंट कौन है. सो इसमें एनी पर्सन कैन बी सप्लायर बट रिसिपिएंट शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म. देन दिस इज व्हाट कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ये समझ में आ गया? नेक्स्ट सर्विस इज सर्विसेज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट.
ओके, गवर्नमेंट ने जो सप्लाई सर्विसेज सप्लाई किया है वो अगेन कहाँ पे टैक्स होता है, रिवर्स चार्ज में टैक्स होता है. सो सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी. अगेन यहाँ पे बिजनेस एंटिटी आ गया. रिसिपिएंट शुड बी बिजनेस एंटिटी एंड सप्लायर कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, यूनियन टेरिटरी हो सकता है या फिर लोकल अथॉरिटी हो सकता है, एनी गवर्नमेंट एंटिटी. ओके, सो ऑल द सर्विसेज, यहाँ पे देखो सर्विसेज स्पेसिफाई किया है क्या नहीं किया है. सो सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एटसेट्रा टू बिजनेस एंटिटी एक्सक्लूडिंग दिस 4 सर्विसेज. सो गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड यू एनी टाइप ऑफ सर्विस. If it is other than these 4 type of services, then it will always be covered under reverse charge, provided it is provided to whom, business entity, right. कौन से सर्विस एक्सक्लूड किए हैं देखो, मतलब ये 4 सर्विस पे या क्लॉज 5 के अंडर आरसीएम नहीं आता है. कौन कौन से, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो इफ गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे लिया है, ओके, सो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू रेंटिंग सर्विसेज, उसके ऊपर आरसीएम आएगा क्या, क्लॉज 5 के अंडर नहीं आएगा क्योंकि ये रेंटिंग के लिए अलग से क्लॉज है. ओके, सो एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, नेमली स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज. पोस्ट ऑफिस के जो 4 टाइप के सर्विस है, कौन कौन से, स्पीड पोस्ट का सर्विस होता है या फिर एक्सप्रेस पार्सल या फिर पोस्ट से आपको लाइफ इंश्योरेंस का सर्विस भी प्रोवाइड होता है या फिर वो कोई एजेंसी सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये 4 सर्विसेज पोस्ट डिपार्टमेंट के आरसीएम में कवर नहीं होते क्योंकि ये फॉरवर्ड चार्ज में कवर होते हैं. ओके, उसके ऊपर पोस्ट आपने कभी स्पीड पोस्ट से डॉक्यूमेंट कोई भेजा है तो उसका आप रिसिप्ट मिलता है, वो देखो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज हुआ रहता है. ओके, क्योंकि वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स है. ओके, सो पोस्ट ऑफिस की जो 4 सर्विसेज है वो आरसीएम में कवर नहीं हो जाएंगे. नेक्स्ट, सर्विसेज इन रिलेशन टू वेसल और एयरक्राफ्ट्स इनसाइड और आउटसाइड द प्रिसिंक्ट्स ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट. ओके, सो हमारे यहाँ पे आपको पता रहेगा एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करके गवर्नमेंट की अथॉरिटी है. ओके, और वो एयरपोर्ट्स पे बहुत सारे फैसिलिटीज ये एयरक्राफ्ट्स को देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को. ओके, जैसे कि वो आपको एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का वो टावर रहता है, उसमें से वो ट्रैफिक मैनेज करना, उनको क्लियरेंस देना लैंडिंग करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए, बहुत सारे सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है. या फिर वो आपको पता है क्या कि जब वो एयरपोर्ट पे कोई भी प्लेन जो होता है वो जब लैंड करके अगर वो रुका हुआ रहता है तो उसका रेंट पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को. तो बहुत सारे सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट्स ये एयरक्राफ्ट कंपनीज को देते हैं या फिर वेसल मतलब पोर्ट जो रहते हैं बाय वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए भी ऐसे कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है. अगेन दो सर्विसेज आर नॉट कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. अंडरस्टूड. एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये 4 टाइप की सर्विस छोड़ के कोई भी सर्विस आप गवर्नमेंट से लेते हो तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करेगा. कौन टैक्स पे करेगा? रिसिपिएंट, मतलब एनी बिजनेस एंटिटी विच इज रिसीविंग दैट सर्विसेज विल हैव टू पे टैक्स ऑन दिस ट्रांजैक्शंस. अंडरस्टूड. देखो समझ में आ गया. यस. नेक्स्ट इज सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट. इसका मतलब देखो यहां पे हमने देखा कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आरसीएम में टैक्स नहीं होता है. ओके, लेकिन क्लॉज 5 क्या बोलता है? अगर ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ देन दिस इज कवर्ड अंडर आरसीएम. सो जो रजिस्टर्ड पर देखो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है ऐसे पर्सन को सर्विस दिया तो आरसीएम में नहीं आएगा. ओके, अगर ऐसे पर्सन को गवर्नमेंट ने सर्विस दिया है जो जीएसटी लॉ के अंडर क्या है? रजिस्टर्ड है, देन ओनली इट इज कवर्ड अंडर व्हाट? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. एंड द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड हैज टू पे टैक्स ऑन दोस ट्रांजैक्शंस. अंडरस्टूड. देखो हाँ, ऐसा है कि रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब क्या? जीएसटी में ऐसा प्रोविजन है कि अगर वो सीजीएसटी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हुआ है तो इट इज डीम्ड दैट ही इज रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी, एजीएसटी एज वेल एज आईजीएसटी. ओके, समझ में आ गया. सो कोई भी एक लॉ के अंडर में रजिस्टर होता हो तो आई विल बी डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर ऑल द लॉज. सो अंडर सीजीएसटी इट मीन्स इट ही इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ. अंडरस्टूड. सो गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस प्रोवाइड करता है किसको? एनी रजिस्टर्ड पर्सन को. Then this service is covered under reverse charge and that registered recipient has to pay tax on these services. समझ में आ गया? Okay.
Now, next type of service is 5AA. This is a newly added service. Services by way of renting of residential dwelling to a registered person. Again, ओके नॉर्मली देखो जीएसटी में ऐसा है कि रेसिडेंशियल फ्लैट अगर आप रेंट पे देते हो ना किसी को तो दैट सर्विस इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी. सो अगर आपका कोई फ्लैट है और आप किसी को रेंट पे दोगे तो वो एग्जम्प्ट है. लेकिन यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, अगर वो सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, मान लो सपोज देयर इज अ रेसिडेंशियल फ्लैट विच इज ओन बाय मी, ओके, एंड आई हैव गिवन दैट फ्लैट ऑन रेंट टू अ कंपनी फॉर रेसिडेंस ऑफ दैट कंपनीज डायरेक्टर. फिर कंपनी का कोई ऑफिसर है या बैंक का कोई ऑफिसर है, गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है, ओके, जिसको मैंने मेरा फ्लैट रेंट पे दिया है, वो उसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे देता हूं और रिसिपेंट जो है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंडर, तो ये सर्विस एग्जाम नहीं होगा. ये कहाँ पे कवर हो जाएगा, आरसीएम में कवर हो जाएगा. मतलब फ्लैट ओनर को टैक्स नहीं देना है उसके ऊपर. किसको देना है, जो रेंट जो टेनेंट है उस टेनेंट को टैक्स पे करना है इफ ही इज रजिस्टर्ड. Okay, so renting of residential dwelling, supplier can be any person, but recipient should be any registered person. Okay, देखो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो टैक्स नहीं होगा. या फिर देखो हाँ कि यस अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो टैक्स नहीं होगा. रिसिपेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड, देन ओनली दिस इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. अंडरस्टूड. सो जो रजिस्टर्ड रिसिपेंट है उसको उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को क्या करना है, पे करना है. अंडरस्टूड. Okay. Now, next sixth type of service which is covered under RCM, services supplied by a director of a company, body corporate to the said company or body corporate. Okay. डायरेक्टर ने कंपनी को प्रोवाइड की हुई जो सर्विस है, अगेन इट इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज. ओके, एंड उस ट्रांजैक्शन के ऊपर कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है. डायरेक्टर को जो फीस पे होती है उसके ऊपर किसको टैक्स पे करना है, कंपनी को पे करना है, बिकॉज कंपनी इज रिसीविंग द सर्विस एंड डायरेक्टर इज प्रोवाइडिंग द सर्विस. तो डायरेक्टर के ऊपर कोई भी लायबिलिटी जीएसटी भरने का नहीं आता है. इसमें एक छोटा सा पार्ट ऐसा है कि लेट्स से द डायरेक्टर इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. ओके, डायरेक्टर क्या है, कंपनी का एम्प्लॉय है एंड ही इज द डायरेक्टर. तो एक हमने शेड्यूल 3 पढ़ा था थोड़ी देर पहले, उसमें क्या बोला था, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई. तो अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय है कंपनी का और कंपनी को सर्विस दे रहा है तो वो रिवर्स चार्ज में कवर नहीं होगा, क्योंकि उसका जो एक्टिविटी है वो सप्लाई करके ट्रीट ही नहीं होने वाला है, क्योंकि वो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया हुआ सर्विस है. तो अगर वो सप्लाई ट्रीट नहीं होता तो जीएसटी आएगा क्या उसके ऊपर, नहीं आएगा. समझ में आ गया. ओके, सो ये आपको देखना है. नॉर्मली जो वोल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं ना कंपनी के, दीज आर एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी. कंपनी के पेरोल पे होते हैं और उनको डायरेक्टर बनाया जाता है. ओके, सो इसमें कौन कवर हो जाएगा, जो एम्प्लॉय डायरेक्टर नहीं है कंपनी के, मतलब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहते हैं या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रहते हैं, ऐसे जो है वो नॉर्मली इसमें कवर हो जाते हैं. सो डायरेक्टर अगर कंपनी को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा, रिसिपेंट, मतलब कंपनी पे करेगी. डायरेक्टर के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं आता है. समझ में आ गया. ओके, नेक्स्ट इज सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस. इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, ओके, एलआईसी एजेंट्स या फिर कोई भी इंश्योरेंस के एजेंट्स होते हैं जो पॉलिसी लोगों के बनाने का काम करते हैं, या फिर जनरल इंश्योरेंस के भी एजेंट होते हैं. ओके, सो उनके जो सर्विसेज हैं अगेन दैट आर कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज. सो नाउ टेल मी, इफ देयर इज अ पर्सन हु इज एन एलआईसी एजेंट, तो वो सर्विस किसको प्रोवाइड करता है, कस्टमर को प्रोवाइड करता है कि एलआईसी को प्रोवाइड करता है. whom he is providing the service? No, he is not providing service to customer, he is providing service to LIC, because वो LIC का एजेंट है ना. ऑन बिहाफ ऑफ LIC इज प्रोवाइडिंग द सर्विस टू कस्टमर. इसका मतलब कस्टमर का सर्विस LIC का है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ LIC दैट एजेंट इज वर्किंग. सो एजेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू इंश्योरेंस कंपनी एंड नॉट टू द कस्टमर. सो उसमें उन्होंने क्या बोला है कि इंश्योरेंस एजेंट इज नॉट लायबल टू पे GST. ओके, हु इज लायबल टू पे, जो रिसिपेंट है, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसके ऊपर GST पे करेगा. सो LIC एजेंट रहेगा तो उसको जो कमीशन मिलता है एजेंट को, मतलब ना एजेंट को कमीशन मिलता है जितना वो पॉलिसी करता है उसके ऊपर. सो उस केस में उस कमीशन पे वो LIC एजेंट को GST नहीं पे करना है. किसको पे करना है, LIC को पे करना है, बीइंग रिसिपिएंट ऑफ सर्विस. ठीक है, ये GTA का ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बाकी के कंपेरेटिवली इजी है. नेक्स्ट, सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और NBFC.
बैंकों के रिकवरी एजेंट्स होते हैं, बताए क्या होते हैं वो रिकवरी एजेंट का काम? हाँ, अगर आप लोन लेते हो बैंक से और डिफ़ॉल्ट करते हो पेमेंट में, तो पहले आपको समझाने के लिए आ जाएंगे कि पैसे भरो, अगर नहीं करते तो बाउंसर लेके आ जाएंगे, पता है ना आपको, रिकवरी एजेंट्स। ओके, सो उनका जो एक्टिविटी है दैट इज अगेन कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। सो रिकवरी एजेंट को कोई भी टैक्स नहीं पे करना है, जो रिसिपेंट है आइदर वो बैंक रहेगा या एनबीएफसी रहेगा, उसको बीइंग रिसिपेंट उसके ऊपर टैक्स पे करना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना सब? ओके, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ट्रांसपोर्टर का लगा हुआ होगा वो, दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर। ओके, सो ये आपको फिर बार बार रीड करोगे लेक्चर्स, फिर बार बार सुनोगे तो ये आपके दिमाग में पक्का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सर्विस कवर्ड इज सप्लायर ऑफ सर्विस बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट और like by way of transfer of or permitting use or enjoyment of copyright covered under section 13(1)(a) of Copyright Act 1957 relating to original literary, dramatic, musical or artistic work to a music company or producer or like। ओके, ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, ओके, मतलब कौन? म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या फिर आर्टिस्ट। ओके, म्यूजिक कंपोजर क्या करता है? कोई भी अगर गाना है तो उसका म्यूजिक बनाने का काम करता है। ओके, और उसके ऊपर उस कंपोजर का कॉपीराइट होता है क्योंकि वो उसने दिया हुआ म्यूजिक है। तो जब कैसे होता है कि कोई भी पिक्चर में उसका गाना अगर लेना है तो प्रोड्यूसर अप्रोचेस दैट म्यूजिक कंपोजर। ये म्यूजिक कंपोजर क्या करता है? ही अलाउज दैट प्रोड्यूसर टू यूज हिज सॉन्ग इन द मूवी, एंड उसके बदले में वो जो म्यूजिक कंपोजर वो जो प्रोड्यूसर है वो कंपोजर को अमाउंट पे करता है। ओके, सिमिलरली कोई अगर फोटोग्राफर रहेगा, उसका कुछ फोटो रहेगा, वो फोटो अगर किसी बुक में पब्लिश करना है तो उसका परमिशन लेना पड़ता है। सिमिलरली अगर कोई आर्टिस्ट रहता है, सभी के बारे में ऐसा ही होता है। ओके, सो अगर ऐसा कोई म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट रहेगा, वो किसी म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर या ऐसे कुछ लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, तो अगेन दैट इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। सो म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट जो लोग हैं उनके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं आता जीएसटी पे करने का। किसके ऊपर आता है? जो रिसिपिएंट है, मतलब अगर वो फिल्म का प्रोड्यूसर रहेगा और म्यूजिक कंपनी रहेगा, सो उनके ऊपर ये जीएसटी पे करने का लायबिलिटी बनता है। ठीक है, सो अगेन ये आर्टिस्ट लोगों को लायबिलिटी से एग्जम्प्ट किया है उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट इज सप्लायर ऑफ सर्विस बाय एन ऑथर by transfer or permitting the use or enjoyment of a copyright covered under 13(1)(a) of Copyright Act relating to original literary, dramatic, musical or artistic work to a publisher। जैसे ये म्यूजिक कंपोजर के केस में होता है, ऐसा ही सेम ऑथर के केस में भी होता है। ऑथर क्या करता है? खुद से वो बुक लिखता है कोई तो, ठीक है, सो बुक का जो कंटेंट है उसका कॉपीराइट वो ऑथर के पास होता है। सो ऑथर का काम सिर्फ बुक का लिखने का है, बुक्स पब्लिश करने वाला पब्लिशर अलग रहता है, राइट ना। सो ऑथर क्या करता है? ही अलाउज हिज ओरिजिनल वर्क टू बी यूज बाय द पब्लिशर। पब्लिशर उसका बुक प्रिंट करता है, मार्केट में बेचता है और उसमें से कुछ कमीशन या फिर कुछ रॉयल्टी ऑथर को पे करता है। सो ऐसा अगर कोई एक्टिविटी रहता है तो ऑथर के ऊपर लायबिलिटी नहीं बनता। नॉर्मल केस में लायबिलिटी किसके ऊपर बनता है? जो पब्लिशर है, बीइंग रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, ही हैज टू पे टैक्स ऑन दोस ट्रांजैक्शन। लेकिन यहाँ पे जैसे अब हमने देखा था ना कि जीटीए को ऑप्शन है 5% या 12% से भरने का, ऐसा ही इस ऑथर के केस में, सिर्फ म्यूजिक कंपोजर फोटोग्राफर के केस में नहीं, सिर्फ ऑथर के केस में उसको ऑप्शन दिया है कि अगर उसको लगता है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर सकता है। फॉरवर्ड चार्ज में मतलब उसके ऊपर ऑथर खुद से टैक्स पे करेगा। इन दैट केस दैट पब्लिशर हैज नो लायबिलिटी टू पे द टैक्सेस। अंडरस्टूड? ओके, सो क्या है कि हाउएवर एन ऑथर में चूज टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, इसमें दो कंडीशंस, ही हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। सो उसको क्या करना है? पहले जीएसटी के अंडर खुद का रजिस्ट्रेशन लेना है एंड फाइल्ड अ डिक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म दैट ही एक्सरसाइजेज ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज एंड ही शैल नॉट विड्रॉ द ऑप्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। सो उसको क्या करना है? जीएसटी के अंडर रजिस्टर करवाना है खुद को, और उसके बाद व्हाट ही हैज टू डू, ही हैज टू फाइल अ डिक्लेरेशन कि आई एम विलिंग टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, और एक बार वो ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो अगले 1 साल तक उससे वो विड्रॉ नहीं करेगा। ओके, ऐसा उसको डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है। एंड वो जो इनवॉइस देता है ओके पब्लिशर को, उस इनवॉइस में भी उसको डिक्लेयर करना है कि आई एम पेइंग टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, क्योंकि अदरवाइज पब्लिशर को पता नहीं चलेगा ना कि उसके ऊपर टैक्स भरना है कि नहीं भरना है। सो अगर ऑथर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स भरने का ऑप्शन चूज करता है, ओके, सो इन दैट केस रिवर्स चार्ज में वो कवर नहीं होगा और ऑथर को खुद को टैक्स पे करना है।
लेकिन अगर ऑथर ने ऑप्शन नहीं लिया है तो उसमें क्या होगा, ऑथर के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगा. जो पब्लिशर है, बीइंग रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, ही विल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन दिस ट्रांजैक्शंस. अंडरस्टूड? ओके. सो देखो सिर्फ ऑथर के केस में ऑप्शन अवेलेबल है फॉरवर्ड चार्ज में पे करने का, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर के केस में अवेलेबल नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कवर्ड अंडर आरसीएम इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई. ओके. रिजर्व बैंक का एक ओवरसीइंग कमिटी होता है, डिटेल में नहीं जाता हूं मैं, ओके, क्योंकि दैट इज नॉट नीडेड. सो वो जो ओवरसीइंग कमिटी ऑन द बिहाफ ऑफ आरबीआई कुछ तो एक्टिविटीज करता है, तो उसके केस में ओवरसीइंग कमिटी इज द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, रेसिपिएंट कौन है, आरबीआई है. सो उसके ऊपर टैक्स किसको पे करना है, आरबीआई, रिवर्स चार्ज के अंडर. बीइंग रेसिपिएंट ये अपना कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल पे द टैक्स. ओके. नेक्स्ट इज सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप और रिलेटेड लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म टू बैंक और एनबीएफसी. ओके. ये जो एजेंट्स बैंकों के बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करने वाले होते हैं, पता है आपको. ओके. सो जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स होते हैं, मतलब जो बैंक के बिहाफ पे आपका अकाउंट ओपन करके देंगे या फिर ऐसा कुछ एक्टिविटी करेंगे. ओके. या फिर जो एनबीएफसी है, एनबीएफसी बोले तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, मतलब अगर बजाज फाइनेंस लिस्ट के एग्जांपल. सो बजाज फाइनेंस के ईएमआई पे अगर आपको कुछ ये करना है, तो ये जो मोबाइल वाले या इलेक्ट्रॉनिक वाले जो आपको ईएमआई का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, दे आर द डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स ऑफ बजाज फाइनेंस. ओके. सो ऐसे कुछ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स अगर किसी एनबीएफसी को कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो दैट सर्विस विल बी कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज. लेकिन इसमें इन्होंने कंडीशन क्या दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ये जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, इफ दैट डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट और दैट डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इज अ पार्टनरशिप फर्म और दैट डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इज एलएलपी, देन दिस सर्विस इज नॉट कवर्ड अंडर आरसीएम. अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप या एलएलपी है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को खुद को टैक्स भरना है उसके ऊपर. अंडरस्टूड? उसको खुद को उसके ऊपर टैक्स पे करना है. लेकिन इफ इट इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप और एलएलपी, देन दिस सर्विस इज कवर्ड अंडर आरसीएम और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के ऊपर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता. वो जो एनबीएफसी है, तो वो एनबीएफसी उसका टैक्स पे करेगा. अंडरस्टूड? मतलब देखो कि मिस्टर ए अगर है, हु इज अ प्रोप्राइटर and he is a direct selling agent of Bajaj Finance, then RCM will be applicable and Bajaj Finance will pay the tax. Okay. Suppose A, B and company is a partnership firm and that is direct selling agent of Bajaj Finance, then RCM applicable नहीं होगा because DSA is partnership firm. Understood? या फिर अगर there is A and B LLP which is providing direct selling agent of NBFC, then again that service will not be covered under reverse charge mechanism. Why? Because again provider is LLP. या फिर there is AB private limited या AB limited and that is direct selling agent of Bajaj Finance, then also reverse charge is not applicable. Okay. अगर ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो है वो अगर बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप या एलएलपी होता है, तो वो रिवर्स चार्ज में कवर नहीं होता है. अदर देन दिस अगर रहेगा तो रिवर्स चार्ज में कवर होगा. एनबीएफसी विल पे द टैक्स. ओके. Next is services provided by any business facilitator to a banking company. Okay, अगर कोई business facilitator, मतलब ये ऐसे होता है ना, रूरल एरियाज में बैंकों का एक पर्सन होता है जो पूरे गाँव यहाँ पे मतलब लोगों के डोर टू डोर जाके कैश कलेक्ट करता है, या फिर बहुत सारे बैंक होम कैश डिपॉजिट का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो घरों में जाके कैश कलेक्ट करना या फिर विड्रॉल लोगों को देना, ऐसे वो बिजनेस फैसिलिटेटर करके एक पर्सन होता है जो बैंकों को ये सर्विस प्रोवाइड करता है. सो इफ दैट सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी, देन इट इज कवर्ड अंडर आरसीएम. बिजनेस फैसिलिटेटर इज नॉट लायबल टू पे द टैक्स. हु इज लायबल टू पे? द बैंकिंग कंपनी इज लायबल टू पे द टैक्स. देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट. इफ अ पर्सन इज एक्टिंग एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, ओके, और बिजनेस करस्पॉन्डेंट उसके अंडर कोई एजेंट अपॉइंट करता है. ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी बहुत से बैंकों के केस में काम करते हैं. ओके. सो मान लो इफ आई एम अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट एंड आई हैव अपॉइंटेड अनदर एजेंट बिलो मी फॉर वर्किंग. सो जो मेरा एजेंट मुझे सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब बिजनेस करस्पॉन्डेंट का एजेंट बिजनेस करस्पॉन्डेंट को जो सर्विस प्रोवाइड करता है, वो सर्विस आरसीएम में कवर होता है और बिजनेस करस्पॉन्डेंट हैज टू पे द टैक्स एंड दैट एजेंट इज नॉट लायबल टू पे द टैक्स.
ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट बहुत और 2-3 टाइप के सर्विस देखने हैं आरसीएम में जो टैक्स होते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी गार्ड जो रहते हैं ना एटीएम के बाहर या बैंक के बाहर या किसी ऑफिस में, वो सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करने वाली एक एजेंसी होती है, ओके और वो क्या करती है, सिक्योरिटी की सर्विस प्रोवाइड करती है। सो दैट इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। क्या बोला है देखो, सिक्योरिटी सर्विसेज दैट इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, देन दिस सर्विस इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि एनी पर्सन सप्लायर में भी सिक्योरिटी सर्विस मस्ट बी एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो सिक्योरिटी सर्विस अगर एबीसी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड रहता है तो वो रिवर्स चार्ज में कवर नहीं होगा, उसके ऊपर सिक्योरिटी सर्विस को खुद को टैक्स पे करना है बिकॉज दैट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, सो प्रोवाइड सप्लायर ऑफ सर्विस और प्रोवाइडर ऑफ सर्विस मस्ट बी एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ओके एंड रिसिपिएंट ऑफ सर्विस मस्ट बी एनी रजिस्टर्ड पर्सन। रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होना जरूरी है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो आरसीएम में कवर नहीं होगा, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में कवर होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो दैट सिक्योरिटी सर्विसेज अगेन टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज एंड रिसिपिएंट दैट इज द रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू पे द टैक्स। लेकिन अगेन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि ये सिक्योरिटी सर्विस अगर कोई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को प्रोवाइड किया है, ओके या फिर गवर्नमेंट एजेंसी को पे किया है या फिर एनी ऐसे पर्सन को सर्विस प्रोवाइड किया है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है लेकिन कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा है, ये 3 लोगों को अगर ये सर्विस प्रोवाइड होता है तो ये एंट्री एप्लीकेबल नहीं हो जाएगी। ओके, ये कंपोजिशन स्कीम क्या होता है हम डिटेल में बोलने वाले हैं, थोड़ा डिस्कशन होने दो हमारा 2-3 चैप्टर्स, उसके बाद हम उसके बारे में बोलेंगे। ओके, बट जस्ट मैं बताता हूँ वो क्या होता है। ओके, कंपोजिशन स्कीम में ऐसा है कि जो छोटे लोग हैं, ओके जिनका टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, ओके उनको क्या होता है, ये जो जीएसटी के कंप्लायंसेस है ना वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। ओके, तो जीएसटी की कंप्लायंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो करना उनके लिए उतना मतलब उतना इफिशिएंट या मतलब उसका जो कॉस्ट है वो परवड़ता नहीं है उन लोगों को। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, उनको एक कंपोजिशन स्कीम करके ऑप्शन दिया है, मतलब कम से कम कंप्लायंसेस करके वो जीएसटी में रजिस्टर रह सकते हैं। सो अगर ऐसे कोई कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करने वाले पर्सन को सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड होता है तो वो आरसीएम में कवर नहीं होता है। ओके, सो दीज आर 3 एक्सेप्शंस। अगर रिसिपिएंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट एजेंसी है या फिर रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम है, देन सिक्योरिटी सर्विस पे आरसीएम नहीं आएगा। अदरवाइज दिस सर्विस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। Understood? Okay. Next is services provided by way of renting of any motor vehicle designed to carry passengers where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient provided to a body corporate. Okay, कंपनी की बस रहती है एम्प्लॉयज़ को घर छोड़ने के लिए, घर से पिकअप करने के लिए। ऐसे इनके लिए क्या होता है, कंपनी का खुद का बस नहीं रहता हर टाइम पे, वो कोई भी बस किसी के और का होता है, वो रेंट पे कंपनी लेती है और अपने एम्प्लॉयज़ को छोड़ने के लिए या फिर पिकअप करने के लिए यूज़ करती है। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स है, ओके और वो अगर वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट को क्या करता है, रेंट पे देता है, देन दिस सर्विस इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन उसमें क्या है कि ऐसे कि ये जो व्हीकल का रेंट है दैट शुड बी इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ फ्यूल। अगर ऐसा है कि मैं व्हीकल का रेंट अलग से ले रहा हूँ और फेयर की कॉस्ट अलग से रिकवर कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है ना, जितना डीजल में 1 महीने में यूज़ करूँगा वो मैं एट एक्चुअल लूँगा और मेरी व्हीकल रेंटिंग का अलग से पैसे लूँगा। अगर ऐसा मैं करता हूँ तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। अगर आई एम चार्जिंग कंसोलिडेटेड रेंट इंक्लूडिंग फ्यूल कॉस्ट, देन ओनली दिस इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, इसमें देखो क्या है कि रिसिपिएंट मस्ट बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट छोड़ के अगर कोई है तो आरसीएम में कवर नहीं होगा। रिसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर ये आरसीएम में कवर हो जाएगा। और इसमें भी ऐसा है कि जैसे हमने देखा था कि जीटीए का ऑप्शन है 12% और 5% का, ऐसा ही सेम ऑप्शन ये व्हीकल रेंटिंग वाले लोग हैं उनको भी दिया हुआ है। ओके, सो जो पर्सन व्हीकल ओनर है, if he opts to pay tax at 12%, then it is not covered under RCM. Therefore, supplier कौन होना चाहिए, any person other than body corporate. So supplier body corporate नहीं होना चाहिए और recipient body corporate होना चाहिए। Okay, so supplier any person other than body corporate who supplies service to a body corporate and does not issue invoice charging GST at 6%. मतलब वो 12% का ऑप्शन नहीं लिया है उसमें। अगर वो 12% का ऑप्शन लेता है तो वो रिवर्स चार्ज में टैक्स नहीं होगा, वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स होगा और वो व्हीकल ओनर खुद ही टैक्स पे करेगा उसके ऊपर।
राइट? अगर वो 6% का ऑप्शन उसने नहीं लिया है एंड रिसिपेंट इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड प्रोवाइडर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट एंड रिसिपेंट इज anyone which is a body corporate, then this service is covered under revert charge mechanism and recipient has to pay tax on that transactions. समझ में आ गया? देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि व्हीकल का रेंट शुड बी इंक्लूडिंग फ्यूएल चार्जेस. सेकंड थिंग, सर्विस प्रोवाइडर बॉडी कॉर्पोरेट शुड बी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट. ओके, देन सर्विस प्रोवाइडर शुड नॉट पे टैक्स एट 12% and recipient must be body corporate. अगर ये सब कंडीशन फुलफिल होते हैं then only this service is covered under RCM and recipient will pay tax on that transaction. ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट इज सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम 1997, that is the scheme of Securities and Exchange Board of India as amended from time to time. So ये सिक्योरिटी लेंडिंग का एक स्कीम होता है, ओके, विच इज डिजाइन बाय सेबी. ओके, और इस सिक्योरिटी लेंडिंग के स्कीम के अंडर अगर कोई लेंडर किसी को सिक्योरिटीज लेंड करता है तो जो बोरोवर है, मतलब सिक्योरिटी बोरो करने वाला है, उसके ऊपर उसका टैक्स पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेंडर के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब सिक्योरिटी देने वाले पे टैक्स नहीं है, जो लेने वाला है उसके ऊपर टैक्स है. ठीक है, ये डिटेल स्कीम के बारे में पता नहीं हो तो फर्क नहीं पड़ता. सो लेट्स बेटर नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेट. ओके, सो लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी स्कीम अगर रहता है तो उसके अंडर जो सिक्योरिटी लेंड करने वाला है ही इज प्रोवाइडर, सिक्योरिटी बोरो करने वाला है वो रिसिपिएंट है. सो बोरोवर बीइंग रिसिपिएंट ही इज लायबल टू पे द टैक्स. ओके, एंड सप्लायर इज नॉट लायबल टू पे द टैक्स. अंडरस्टूड? ओके, सो दीज आर द सर्विसेज, 16 टाइप ऑफ डिफरेंट सर्विसेज. एक्चुअली और दो ज़्यादा भी है, लेकिन वो आपके यहाँ पे कवर इंटर में कवर नहीं किए हैं. और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दो ट्रांजेक्शन इसमें रहता है. Okay, so these are 16 type of services which are notified under which section? Section 9 subsection 3 which are covered under RCM. RCM का मतलब क्या होता है? रिवर्ट. इसका मतलब टैक्स कौन पे करता है? रिसिपिएंट पे करता है. सप्लायर के ऊपर कोई भी लीगल लायबिलिटी नहीं बनता टैक्स पे करने का. ओके, सो देखो इतने सारे सर्विस में से सिर्फ 16 सर्विस RCM में नोटिफाइड है, या और दो ज़्यादा, मतलब 20 सर्विस RCM में नोटिफाइड है. इसलिए मैंने बोला क्या 99 आउट ऑफ 100 केसेस में क्या होगा? फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा. लेकिन ये स्पेसिफाइड सर्विसेज जो है उसके ऊपर रिवर्ट चार्ज एप्लीकेबल हो जाता है. ठीक है, सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज रिवर्ट चार्ज मैकेनिज्म? सो इनमें से कोई भी सर्विस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. स्पेसिफिकली ये ऑथर का जो पार्ट है ना, ये इज ऑब्सेस्ड. ये ऑथर वाला क्वेश्चन 2-3 बार पूछा है कि किसके ऊपर लायबिलिटी आएगा. सो ऐसे ही देते कि ऐसा 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 ट्रांजैक्शन हो रहा है. आपको आपने एग्जाम पेपर देखा है कैसे होता है? आपको ना प्रैक्टिकल केस स्टडीज देंगे वो ऐसे बहुत सारे ऐसे कहानी बना के दे देंगे बहुत बड़ी, ऐसा होता है वैसा होता है, और एक क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन टैक्स पे करने के लिए लायबल है. तो आपको बारीक से रीड करना है. ये ना इंस्टीट्यूट का टिपिकल ये है कि दे ट्राई टू कन्फ्यूज यू. ओके, इन वन ऑफ और फाइनल अटेम्प्ट्स मेरा आई थिंक November 13 का अटेम्प्ट रहेगा. ओके, एंड ऑल द पेपर्स वेयर, मतलब ऐसे डेंजर से भी बहुत ज़्यादा जो कुछ हो सकता है उतने डेंजर पेपर्स वो आए थे. और सबसे पहला अकाउंट्स का पेपर रहता है. तो अकाउंट्स के पेपर में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ओके, वो कंपलसरी क्वेश्चन में से था, मतलब ऑप्शन में नहीं था, वो कंपलसरी आंसर करना था. तो आई स्टिल रिमेंबर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ओके, एंड द क्वेश्चन इटसेल्फ रैन ओवर अराउंड 1.5 पेज, मतलब एक पूरा पेज और दूसरा आधे से भी ज़्यादा पेज. इतना बड़ा क्वेश्चन ही था. ओके, कब? November 2013 के अटेम्प्ट में फाइनल की. आज 2024 है ना, 11 साल हो गए, मैंने अभी तक क्वेश्चन रीड नहीं किया है. ओके, वो क्वेश्चन मतलब इतना बड़ा, और उसको पूछा था कि ये इसका डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट में कैसे करोगे. ओके, और जब हमने सजेस्टेड आंसर देखे थे इंस्टीट्यूट के, सिर्फ 3 लाइन में आंसर था उसका. ओके, लेकिन वो क्वेश्चन ही इतना बड़ा दिया था कि मतलब आपका वहीं पे पेशेंस छूट जाता है. तो ऐसे इंस्टीट्यूट का वो ये है कि वो आपको कंफ्यूज करने का ये करेंगे, मतलब उनको एनालाइज करना होता है कि ऐसे प्रैक्टिकल सिचुएशन हमारे सामने आ सकते हैं. तो हाउ यू एनालाइज, हाउ यू डिसाइड दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, एंड हाउ यू एनालाइज एंड हाउ यू ड्रॉ अ कंक्लूजन, ये उनको टेस्ट करना होता है. इसलिए वो ऐसे करते हैं. सो वो क्या करेंगे, ये फोटोग्राफर का है या ऑथर का, ये जो कोई भी ट्रांजैक्शन हमने अभी डिस्कस किया है उस ट्रांजैक्शन को लेके कहानी बनाएंगे बहुत बड़ी, और आपको क्वेश्चन पूछेंगे.
ओके, सो कहानी में हमको क्या इररिलेवेंट पार्ट क्या है वो पहले ढूंढना है, वो बाजू में रखो, काम का क्या है उतना ही देखने का और आंसर करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया आरसीएम सबको। सॉरी, चार्जिंग सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमने सबसे पहले 9192 देखा, बेसिक चार्ज जहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। फिर हमने 93 और 94 देखा जिसमें रिवर्स चार्ज डिफाइन किया हुआ है। अब एक और अदर कैटेगरी है चार्जिंग सेक्शन में, वो सब सेक्शन 95 में है। ओके, वो अब हम रीड करते हैं, क्या बोलते हैं देखो, 9 सबसेक्शन 5, द गवर्नमेंट में on the recommendations of the council by notification specify categories of services the tax on intrastate supplies of which, अब ये CGST का इसलिए इंट्रास्टेट आ गया, IGST में सेम प्रोविजन है लेकिन वर्ड क्या रहेगा, इंटरस्टेट रहेगा। ठीक है, टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ विच शैल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर if such services are supplied through it, and all the provisions of this act shall apply to such electronic commerce operator as if he is the supplier of service for paying the tax in relation to the supply of such services, provided that where an electronic commerce operator does not have physical presence in the taxable territory, any person representing such electronic commerce operator for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay the tax, provided further that where an electronic commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory and also it does not have any representative in the said taxable territory, such electronic commerce operator shall appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying tax and such person shall be liable to pay the tax. Okay, क्या समझ में आ गया इससे? ये जो रेड इसके बाद का जो है ना वो बात काम का नहीं है। ओके, वो बताऊंगा मैं आपको। ये क्या है देखो, 95 में जो ट्रांजैक्शन कवर होते हैं, जो ऐसे ट्रांजैक्शन है विच आर सप्लाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स, इसको ECO इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, ECO बोलते हैं। सी GST बीइंग अ न्यू एज लॉ, उसमें ये जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस, मतलब जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये सब है ना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, अगेन हम जो कुछ भी ऑनलाइन पोर्टल्स या प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ करके कुछ सर्विस या गुड्स बाय करते हैं, उनके लिए ये प्रोविजन उन्होंने यहाँ पे रखा है। ये क्या सॉरी क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंड करो। देखो, ये ऐसे बोलते हैं कि हम कुछ कैटेगरी ऑफ सर्विसेज स्पेसिफाई करेंगे, गुड्स यहाँ पे कवर नहीं हुआ है, ओनली सर्विसेज आर कवर्ड। ओके, हम ऐसे कुछ कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज नोटिफाई करेंगे कि वो सर्विसेज अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड होते हैं तो उसके ऊपर का टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा एज इफ ही हैज प्रोवाइडेड द सर्विस। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मतलब क्या? हाँ, वो एग्जाम्पल्स है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, ओयो, मेक माई ट्रिप, गो आईबीगो, ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स। सो इनका एक टिपिकल फीचर क्या पता है आपको? इन ऑल दिस केसेस देयर इज अ टिपिकल कॉमन फीचर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ओला और उबर। ओके, आपको टैक्सी सर्विस प्रोवाइड होता है। मुझे आप बताइए, ओला या उबर के खुद के ओनरशिप के कोई व्हीकल्स है क्या? एक भी व्हीकल नहीं है। सो जो व्हीकल ओनर है या ड्राइवर है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, या फिर लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ओयो। ओयो डज नॉट ओन एनी होटल एनीवेयर, लेकिन होटल बुकिंग का सर्विस आपको ओयो के थ्रू मिलता है। या फिर आप स्विगी या जोमेटो से कोई ऑर्डर करते हो, स्विगी जोमेटो का खुद का रेस्टोरेंट नहीं है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का एक कॉमन फीचर ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स ऑन देयर ओन डज नॉट प्रोवाइड यू एनी गुड्स और सर्विसेज। अंडरस्टूड? व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट फैसिलिटेटिंग द ट्रेडिंग ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज। वो सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ओके, क्या होता है देखो, अगर जोमेटो से मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ तो मुझे फूड कौन डिलीवर करता है, मतलब फूड प्रोवाइड कौन करता है? वो होटल वाला प्रोवाइड करता है, राइट? जोमेटो का रोल क्या है? सिर्फ मेरे ऑर्डर प्रोसेस करना है, मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, वो प्लेटफॉर्म के थ्रू वो रेस्टोरेंट तक जाएगा, वहाँ से जोमेटो का मैन जो आदमी है, बंदा है, वो ऑर्डर पिकअप करेगा और मुझे आके डिलीवरी देगा। ठीक है, सो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स आर सच एंटिटीज which provide an electronic platform for facilitation of goods and facilitation of trading of goods and services. वो खुद कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, वो क्या करते हैं? सिर्फ फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं आपको।
देखो वैसे अमेजोन से अगर आप कुछ बाय करते हो तो अमेजोन खुद से कुछ बेचता है क्या आपको? कुछ नहीं बेचता, बेचने वाले सेलर कोई अलग ही रहता है, उसमें देते हैं ना आपको ऑप्शन मिलते हैं कौन कौन से मतलब सेलर कौन कौन है, उसमें से आप परचेज कर सकते हो। ओके, सो अगर आप कोई भी लेट से अमेजोन से कोई गुड्स परचेज करोगे, उसका इनवॉइस देखते हो तो इनवॉइस अपारियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के नाम के रहेगा, या फिर ऐसे कुछ अलग अलग वेंडर से उनके नाम पे इनवॉइस रहता है। मतलब अमेजोन क्या कर रहा है, सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको। ओके, ऐसे जो गुड्स ईसीओ के थ्रू सप्लाई होते हैं ये 9.5 में कवर नहीं हो रहे हैं। 9.5 में क्या कवर हो रहा है, जो सर्विसेज ईसीओ के थ्रू ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सर्विसेज प्रोवाइड होती है उनमें से कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज है जो गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं, उस स्पेसिफाइड सर्विस के ऊपर टैक्स पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर है। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर मैं उबर के थ्रू कोई टैक्सी बुक करता हूं तो उबर मुझे सिर्फ फैसिलिटेशन दे रहा है टैक्सी बुक करने का। ओके, एक्चुअल में मुझे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस किसने प्रोवाइड किया, टैक्सी ड्राइवर ने प्रोवाइड किया। ओके, लेकिन उबर के थ्रू प्रोवाइड किया। तो ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट में नोटिफाई किए हैं, वो क्या बोलते हैं कि अगर वो सर्विसेज किसी ईसीओ के थ्रू सप्लाई हो रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन के ऊपर ईसीओ विल पे द टैक्स एंड नॉट द एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर। अगेन इसमें रीजन जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया था आरसीएम के केस में, वैसा ही यहाँ पे है। देखो इंडिविजुअल टैक्सी ओनर्स बहुत सारे हैं जिनका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर नहीं जाता, तो अगर वो 20 लाख के ऊपर टर्नओवर नहीं जाता तो वो जीएसटी के लायबल तो नहीं होंगे। लेकिन अगर ये ओला उबर के थ्रू सर्विस प्रोवाइड हो रहा है तो वो बहुत बड़े स्केल पे सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, तो गवर्नमेंट विल नॉट फॉरगो रेवेन्यू ऑन दैट। सो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, अगर आपके अंडर 2 लाख जीएसटी 2 लाख अगर पर्सन आपके अंडर रजिस्टर्ड है फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग टैक्सी सर्विसेज, देन वी विल नॉट गो एंड कैच ईच एंड एवरी ऑफ दस 2 lakhs। बट उबर के पास तो सब डेटा रहता है, किसने सर्विस प्रोवाइड किया, कहाँ से कहाँ तक प्रोवाइड किया, कितने पैसे चार्ज किए। तो लेट्स कैच उबर एंड कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम उबर। दिस इज द सिंपल गवर्नमेंट का उसके बिहाइंड थॉट प्रोसेस है। देखो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो भी टैक्सेशन लॉज है ना, वो टैक्सेशन लॉज गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना इजी कैसा हो, ये अप्रोच ध्यान में रख के डिज़ाइन किए हुए रहते हैं। सो बहुत सारी जगह पे आपको ये ऐसा दिखा क्योंकि ऐसा प्रोविजन क्यों है लॉ में, तो उसके बिहाइंड थॉट प्रोसेस है कि गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। टैक्सेशन लॉज किसके लिए है कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सके, इसी के लिए वो लॉज डिफाइन किए हुए हैं, लॉ इनेक्ट किए हुए हैं। तो विद दैट अप्रोच द लॉज आर डिफाइंड। सो हमको क्या देखना है कि जो स्पेसिफाइड सर्विसेज अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई होती है तो क्या बोल रहे हैं, उसके ऊपर का टैक्स कौन पे करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा, ना द एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर। एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, वो उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करेगा। सिमिलरली अगर आप लेट से booking.com के थ्रू कोई आप होटल बुक करते हो तो जो होटल है वो टैक्स नहीं पे करता, उसके ऊपर कौन पे करता है, booking.com पे करता है। या फिर स्विगी जोमेटो से अगर आप कुछ फूड ऑर्डर करते हो तो जो रेस्टोरेंट उस फूड के ऊपर टैक्स नहीं पे करेगा, कौन पे करेगा, स्विगी या जोमेटो पे करेगा। अंडरस्टूड। सो ये सर्विसेज कुछ गवर्नमेंट में नोटिस अगेन ऑल ऑफ द सर्विसेज पे अप्लाई नहीं होता है, ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, सिर्फ स्पेसिफाइड सर्विसेज के ऊपर अप्लाई होगा जिसके ऊपर टैक्स किसको देना है, 9.5 के अंडर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना है। सो व्हाट आर दिस सर्विसेज, ओके 4 टाइप के सर्विस नोटिफाइड है जिसके ऊपर ईसीओ को टैक्स पे करना है। फर्स्ट वन, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल। सो बेसिकली ये ओला उबर के सर्विसेज है फर्स्ट इसमें जो नोटिफाई किए हुए हैं। ओके, इन शॉर्ट सर्विसेज बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल। ये अगर किसी ईसीओ के थ्रू आप क्या करते हो, सर्विसेज अगर फैसिलिटेट होता है तो दैट विल बी कवर्ड अंडर दिस ट्रांजैक्शन। ओके, और उसके ऊपर का टैक्स ओला उबर को पे करना है। नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन विच इज नोटिफाइड फॉर दिस 9.5 इज सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल्स, इंस, गेस्ट हाउसेस, क्लब्स, कैंप साइट्स और other commercial places meant for residential or lodging purposes except where the person supplying such service through ECO is liable for registration under 22(1) of CGST Act। मतलब ये कौन सा है, ये आपका मेक माई ट्रिप है,
या फिर booking.com है या फिर ओयो है, मतलब जो लॉज बुकिंग का सर्विस या होटल बुकिंग का सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं, उन सब के केस में वो जो पोर्टल है मतलब booking.com या फिर ओयो या फिर मेक माई ट्रिप, उसको टैक्स पे करना है इस ट्रांजैक्शन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, अगर जो होटल उस ईसीओ के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इफ दैट होटल इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर 22(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, देन इट इज नॉट कवर्ड अंडर 9(5). इसका मतलब देखो, मैं लायबल कब हो जाता हूं, अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जाता है तो, राइट। सो ऐसा कोई होटल है जिसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है और वो इस booking.com या ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ होटल बुकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इस केस में उसकी लायबिलिटी ईसीओ पे नहीं आएगी। किसके ऊपर आएगी? जो होटल है उसके ऊपर आएगी। अंडरस्टूड? सो वो होटल को उसके ऊपर का टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग एटसेट्रा। अर्बन कंपनी और फिर ऐसे कुछ ऐप्स है ना, जो आपको कोई प्लम्बर का सर्विस चाहिए या फिर हाँ, तो ऐसे जो कुछ पोर्टल है वो भी यहाँ पे कवर किए हैं। तो ऐसे कुछ सर्विस उन पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड होता है, तो आपको क्या होना है, उसके ऊपर ईसीओ को, मतलब वो जो पोर्टल है उसको टैक्स देना है। ठीक है। इसमें भी ऐसा है कि उसके थ्रू जो सर्विस सप्लाई करने वाला है उसका टर्नओवर अगर 20 लाख से ऊपर जाता है, तो उस केस में वो जो एक्चुअल सर्विस सप्लायर है वो टैक्स पे करेगा उसके ऊपर का, वो ईसीओ के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट्स एटसेट्रा लोकेटेड इन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। ये क्या है? स्विगी जोमेटो। ओके, स्विगी जोमेटो जिसके थ्रू ये मतलब फूड डिलीवरी ऐप जो है उनके थ्रू अगर कोई सर्विस सप्लाई होता है तो उसके ऊपर का टैक्स रेस्टोरेंट को नहीं देना है। किसको देना है? ईसीओ, मतलब स्विगी जोमेटो को उसके ऊपर का टैक्स पे करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट सप्लाई अदर देन सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट्स लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस बोले तो नो, सी नॉट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। इसका मतलब है अगर कोई रेस्टोरेंट किसी 5 स्टार या अबव कैटेगरी के होटल में लोकेटेड है, ओके, तो उन्होंने ऐसा बोला है कि 5 स्टार और अबव का कैटेगरी मतलब कौन, कि जो होटल रूम के लिए पर नाइट चार्जेस 7,500 से ज़्यादा चार्ज करता है। ओके, ऐसे कोई होटल में अगर कोई रेस्टोरेंट लोकेटेड है और वो स्विगी जोमेटो के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसके ऊपर का टैक्स स्विगी जोमेटो को नहीं भरना है। ओके, अदर देन दिस, अगर कोई भी रेस्टोरेंट ये स्विगी या जोमेटो या फिर ग्रोसाओ कोई भी ऐप रहेगा जिसके थ्रू वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें वो फूड डिलीवरी ऐप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि वो उसके ऊपर का टैक्स पे करे, वो एक्चुअल सर्विस सप्लायर जो है उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं आता। सो ये 4 टाइप के सर्विसेज नोटिफाई किए हुए हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन विच वन 9 सबसेक्शन 5। मतलब ये 4 टाइप के सर्विस अगर ईसीओ के थ्रू सप्लाई होते हैं तो उसके ऊपर का टैक्स लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ईसीओ की है। ओके, एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर को टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अगेन यहाँ पे ऐसा ही है कि ईसीओ आर द ऑर्गेनाइज पर्संस, सो उनको कैच करना ईजी है, उनके पास डेटा भी सब रहता है, सो बेटर इसके गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाता है कि उसके ऊपर का टैक्स वो ईसीओ से वसूल करे। ठीक है। सो ये 4 टाइप के ट्रांजेक्शन ईसीओ के थ्रू सप्लाई होते थे। तो एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट लायबल टू पे द टैक्स, हु इज लायबल? ईसीओ इज लायबल टू पे द टैक्स। अब ये जो सारा बहुत बड़ा ऐसे लिखा हुआ है, ओके, प्रोवाइडेड दैट एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इसका मतलब क्या है मैं बोलता हूँ। ऐसा है कि ईसीओ जो है ना, ये जो है क्या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, सही है। तो ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को अगर सर्विस प्रोवाइड करना है तो नॉट नेसेसरीली उसका इंडिया में प्रेजेंस होए, ऐसा हो सकता है। ओके, कि इंडिया में उनका प्रेजेंस है ही नहीं, वो कोई तो यूएस या जापान में या फिर चाइना में बैठा हुआ कंपनी है, वो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कि सब तो टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, पोर्टल के थ्रू होता है, तो उनका इंडिया में प्रेजेंस होना ज़रूरी है क्या? नहीं है। इंडिया में ऑफिस होना ज़रूरी है क्या? नहीं है, राइट। तो इनके लिए ये प्रोविज़न ऐसा है कि अगर कोई ईसीओ ऐसे सर्विस इंडिया में प्रोवाइड कर रहा है और उसका इंडिया में कोई भी ऑफिस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ऑफिस के थ्रू सब कंप्लायंसेस हो जाएंगे। अगर उनका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो वो ईसीओ को कोई भी पर्पस के लिए रिप्रेजेंट करने वाला जो पर्सन है, ही विल बी लायबल टू पे द टैक्स ऑन दैट ट्रांजैक्शन। अंडरस्टूड? ओके, एंड
अगर ऐसा है कि उनका इंडिया में ऑफिस भी नहीं है या इंडिया में उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने इंडिया में ऐसा कोई पर्सन अपॉइंट करना है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग टैक्स कंप्लायंसेस। मतलब उनको छोड़ा नहीं है, कुछ भी करो लेकिन आप टैक्स पे करो, बस इतना ही है, ठीक है। इसके लिए ये बात सारा प्रोविजो 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 सब दिया हुआ है। सो अंडरस्टूड 9(5) क्या होता है। सो बेसिकली चार्जिंग सेक्शन में हमने देखो क्या देखा, सी 9(5) का मतलब IGST का 5 सबसेक्शन 5, UTGST का 7 सबसेक्शन 5, ओके। सो वो करस्पॉन्डिंगली सिर्फ चेंज हो जाएगा। 9(1) में हमने क्या देखा कि टैक्स शैल बी लेविड ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। 9(2) में हमने क्या देखा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 5 टाइप के, कौन से, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये 5 टाइप के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसके बारे में क्या है, GST इज एप्लीकेबल, बट एप्लीकेबिलिटी का डेट नोटिफाई नहीं किया है। तो जब गवर्नमेंट डेट नोटिफाई करेगा उस डेट से उनके ऊपर का GST एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। 9 सबसेक्शन 3 एंड 9 सबसेक्शन 4 वेयर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले ट्रांजैक्शन। 9(3) में क्या है, गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई सर्विसेज और गुड्स जिसके ऊपर RCM एप्लीकेबल होगा, उसमें रिसिपेंट और सप्लायर कौन है मैटर नहीं करेगा। 9(4) में क्या है, गवर्नमेंट सर्विसेज और गुड्स नोटिफाई करेगा, लेकिन वो नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज अगर किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को सप्लाई किए हैं, देन ओनली दिस आर कवर्ड अंडर RCM। इसके बाद हमने 9(3) के अंडर जो सर्विसेज कवर्ड होते हैं वो 15-16 सर्विसेज की लिस्ट देखी, और उसके बाद हमने 9(5) डिस्कस किया। 9(5) बेसिकली टॉक्स अबाउट द सर्विसेज सप्लाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जिनमें टैक्स पे करने का लायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर आता है, ओके, एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर पे नहीं आता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्जिंग सेक्शंस, ओके। इसमें आपके मॉड्यूल में एक कंपोजिशन स्कीम करके सेपरेट पार्ट दिया हुआ है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस नाउ, बिकॉज वो अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बाकी के कुछ प्रोविजन GST के अंडरस्टैंड होना जरूरी है। सो कंपोजिशन स्कीम ये जो छोटा पार्ट है, फॉर टाइमिंग वी आर स्किपिंग, आफ्टर डिस्कसिंग सम 2-3 अदर चैप्टर्स वी विल अगेन कम बैक एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट कंपोजिशन स्कीम। इसमें एक और पार्ट बचा है, आपको पता है हमने एक बोला था कि देयर इज HSN कोड फॉर गुड्स एंड SAC कोड फॉर सर्विसेज, पता है, गुड्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है एज पर HSN कोड्स। तो वो HSN कोड क्या होता है, इसके बारे में एक जनरल थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शॉर्ट नोट के लिए एग्जाम आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज HSN कोड, आपको पता है गैट नाम की एक चीज है हमारे यहाँ पे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। WTO पता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो यूनो के जो मेंबर्स हैं उन्होंने एक वर्ल्ड वाइड एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसको गैट बोलते हैं, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड किस टर्म्स पे करने हैं उसका वो एक जनरल एग्रीमेंट है। उसके अंडर ना ये एक HSN कोड मतलब एक कंसेप्ट डिफाइन किया हुआ है जिसको बोलते हैं HSN मीन्स हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इसका मतलब ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये जो फोन है मैं इंडिया में इसको मोबाइल फोन बोलता हूँ, ओके, चाइनीज लैंग्वेज में उसको कुछ अलग बोलते रहेंगे, राइट ना। अगर आप अफ्रीका में जाओगे तो उनके कुछ लैंग्वेज में उसको कुछ अलग नाम रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इंटरनेशनल इस गुड्स का ट्रेडिंग करने वाला हूं तो नाम से गुड्स आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है, क्योंकि हर एक कंट्री की लैंग्वेज अलग अलग है, ओके, हर एक कंट्री में उसका नाम अलग अलग रहेगा। तो उसमें यूनिफॉर्मिटी हम कैसे लाए, इसके ऊपर जब डिस्कशन चल रहा था, देन उसमें से ये HSN कोड का सिस्टम उन्होंने डिफाइन किया है। इसका मतलब कि नाम कुछ भी हो उस प्रोडक्ट का, हम क्या करेंगे, इस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को कोई तो न्यूमेरिकल कोड डिफाइन करेंगे, एंड दैट न्यूमेरिकल कोड विल बी यूनिफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो अगर मैं कोई एक HSN कोड का गुड्स देखता हूं तो वो HSN कोड दुनिया भर में एक जैसा ही यूज होगा, तो गुड्स का आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाएगा। समझ में आ गया, ओके। तो ऐसे थॉट प्रोसेस से वो HSN कोड जो है वो HSN कोड का जन्म हुआ है, ओके। और ये वर्ल्ड वाइड सिमिलर HSN कोड्स यूज होते हैं। सो HSN मीन्स हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये गुड्स के लिए होता है, और सर्विसेज के लिए क्या होता है, उसको SAC बोलते हैं, मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड, ओके। ये HSN कोड कैसा होता है, HSN कोड इट्स 8 डिजिट कोड, ओके। उसमें जो पहले 2 डिजिट है उसको सेक्शन बोलते हैं, ओके, उसको क्या बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट 2 डिजिट है उसको लेट्स से चैप्टर बोलते हैं, नेक्स्ट उसको बोलते हैं हेडिंग,
उसको बोलते हैं सब हेडिंग। सो 2 डिजिट का सेक्शन, 2 डिजिट का चैप्टर, 2 डिजिट का हेडिंग, 2 डिजिट का सब हेडिंग, ऐसा मिलके 8 डिजिट का ये कोड हो जाता है। एंड टैरिफ एटम इज द एक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट एटम। सो 8 डिजिट का कोड और उसका डिस्क्रिप्शन, ऐसे ये HSN कोड बनता है। ओके, सो कैसे होता है, आई विल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, दिस इज नॉट रियल HSN कोड, ऐसे नहीं हो सकते, इट इज ओनली हाइपोथेटिकल एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स से व्हीकल्स का HSN कोड मुझे देखना है, तो कैसे है कि व्हीकल इज अ ब्रॉड सेक्शन। सो लेट्स से 80 इज द कोड फॉर व्हीकल सेक्शन। सो उसका सेक्शन कोड क्या हो गया, लेट्स से 80 हो गया। तो व्हीकल में अगर सब कैटेगरी क्या हो सकती है, देयर कैन बी 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स। ओके, सो उन्होंने क्या किया, इस सेक्शन के अंडर अलग अलग चैप्टर्स बनाए। सो जैसे 4 व्हीलर को लेट्स से 01 कोड है, लेट्स अज्यूम। ओके, लेट्स से 2 व्हीलर को 02 रहेगा, 3 व्हीलर को 03 रहेगा। ओके, सो सेक्शन के अंडर चैप्टर आ जाते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि 4 व्हीलर के लिए चैप्टर हेडिंग है 01। ओके, अब देखो व्हीकल के अंडर भी अगर कैटेगरी, 4 व्हीलर में भी अंडर कैटेगरी हो सकते हैं। देयर कैन बी पेट्रोल व्हीकल्स, देयर कैन बी डीजल व्हीकल्स, देयर कैन बी CNG व्हीकल्स, देयर कैन बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो ये चैप्टर के अंडर अलग अलग से हेडिंग आ जाते हैं। सो लेट्स से 02 इज हेडिंग फॉर पेट्रोल व्हीकल, 03 इज फॉर डीजल व्हीकल, ओके, और लेट्स से 04 इज फॉर CNG व्हीकल, 05 इज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो उसके अंडर अगर फिर से अगर सब कैटेगराइजेशन हो जाएगा। अब देखो इसमें भी और कैटेगरीज हो सकती है। अगर मैं पेट्रोल के अंडर जाता हूं तो मान लो 1000 सीसी तक इंजन कैपेसिटी है, ये एक कैटेगरी हो गई। पेट्रोल व्हीकल मोर देन 1000 सीसी कैपेसिटी, अलग एक कैटेगरी हो गई। डीजल में भी ऐसा हो सकता है, 1200 सीसी तक की एक कैटेगरी हो गई, 1200 से ज़्यादा सीसी इंजन की अलग कैटेगरी हो गई। सेम कैन बी फॉर CNG, ओके, सेम कैन बी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल को तो सीसी का सवाल नहीं आता, उसके लिए कुछ अलग क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे लेट्स से आई एम ओनिंग अ व्हीकल, ओके, आई एम ओनिंग लेट्स से वैगनआर कार, उसका इंजन कैपेसिटी क्या है 900 सीसी का है, वो पेट्रोल व्हीकल है, लेट्स सी। सो उसका HSN क्या होगा, ब्रॉड सेक्शन 80 व्हीकल का है, उसमें वो 4 व्हीलर है इसलिए 01, उसमें वो पेट्रोल व्हीकल है इसलिए 02, और इसकी कैपेसिटी 1000 सीसी से कम है इसलिए 12। सो वैगनर पेट्रोल व्हीकल और वैगनर पेट्रोल कार का HSN हो जाएगा 80, 01, 02, 12, ऐसा 8 डिजिट का कोड हो जाता है। समझ में आ गया। अगर कोई गुड्स है जिसका इंजन 1000 सीसी से ज़्यादा है तो इट विल बी 80, 01, 02, 13। अगर वो डीजल व्हीकल है तो 80, 01, 03, 21, ऐसे 8 डिजिट का वो कोड हो जाता है। सो GST में ना कहीं पे भी 8 डिजिट का HSN यूज़ नहीं किया है, they have stopped up to this 6 digit only. ओके, सो GST में बहुत सारी जगह पे 6 डिजिट HSN यूज किया है, लेकिन अगर आप इसका ना एक टैरिफ हेडिंग का बुक आता है बहुत बड़ा, जिसमें हर एक टाइप के गुड्स के लिए कोड कौन से है वो डिफाइन किए हुए हैं। ओके, सो दिस इज, मैंने ऐसा आपको एक क्या बोला, मोटा मोटी बोला है कि HSN कोड का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। सो इस हिसाब से जो भी गुड्स हमारे यहाँ पे है, जो भी सर्विसेज है, वो इस गुड्स HSN कोड में क्लासीफाई किए हुए हैं, सर्विसेज SAC कोड में। सर्विसेज में जो SAC कोड रहता है ना, ऐसे ही लॉजिक से चलता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 6 डिजिट का कोड होता है। देयर इज नो 8 डिजिट कोड फॉर SAC, फॉर सर्विसेज देयर इज अ 6 डिजिट कोड। ओके, और हमारे पे सभी के सभी सर्विसेज के कोड 99 से शुरू होते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड HSN एंड SAC। समझ में आ गया कैसे होता है। ऐसे हर एक टाइप के गुड्स का अलग अलग से क्लासिफिकेशन आपको किया हुआ दिखाएंगे। ओके, सो ऑन दिस बेसिस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर क्लासिफाइड और आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट व्हाट वी कैन से डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट टाइप्स। इसको HSN और मतलब GST का कोई भी रेट शेड्यूल या फिर ऐसा कोई आप देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको ये HSN के हिसाब से ही दिखा रहेगा। सो मोबाइल फ़ोन, उसके सामने उसका HSN कोड और उसका GST का रेट। सो ये गुड्स और सर्विस के क्लासिफिकेशन के लिए ये यूज जो होता है, ये सिस्टम है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स सर्विस अंडर GST, HSN कोड, एंड सर्विसेज के लिए SAC कोड। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, क्लासिफिकेशन, और ऑल अबाउट चार्जिंग सेक्शन अंडर GST। चार्ज ऑफ GST का जो चैप्टर है उसका कंपोजिशन स्कीम का पार्ट छोड़ के बाकी का हमने अभी तक डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर टाइमिंग हम ये चैप्टर एंड कर रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद का जो चैप्टर है वो है एग्जम्पशंस अंडर जीएसटी, वो हम सबसे लास्ट में देखने वाले हैं। ओके, वो हम सबसे लास्ट में देखने वाले हैं। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। ओके, वो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है उसका डिस्कशन वी विल डू। तो अब देखो चैप्टर तो खत्म हुआ है, 4 बज गए, तो क्या अभी ब्रेक लेना है 10 मिनट का? सो आफ्टर ब्रेक वी विल स्टार्ट न्यू लेक्चर, न्यू चैप्टर, क्योंकि अदरवाइज 4:30 को ब्रेक लेना है तो बीच में वो तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स टेक अभी के 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और इमीडिएटली वी विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर। सो गूगल मीट पे जो है इस मीट से एग्जिट करो, अगेन आफ्टर 10 मिनट वी विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर। ओके।